Hello dear students, I am Shashank Shekhar Shukla, Sita Group of Education. Today I am going to teach you first chapter from the supplementary portion for the 10th class students. The chapter name is The Inventor Who Kept His Promise. Before chapter, I want to tell you that 3 questions will come from the supplementary portion. First question will be related to question answer. 3 questions will come in your question paper and you have to write any 2 answers. Each question has 2 marks. Second question will be related to true and false. 4 questions will be given in 1 mark and you have to write all the 4 questions and you will get the 4 marks. And third question will be related to multiple choice type. 1 question will be given and 4 options will be given. You have to select right option and you also will get the 4 marks for that question. So first of all, we will read about the chapter The Inventor Who Kept His Promise. We will discuss in this chapter about a great scientist whose name was Thomas Alva Edison. Now students, see, Thomas Alva Edison was a famous scientist of America. He invented electric bulb and gramophone. He loved to do experiment and to ask funny questions. Once he asked his teacher how the kites could fly without wings. The puzzled pareshan teacher thought him stupid and naughty and turned him out of the school. He was just 8 years old when it happened. Edison's best teacher was his own mother. She answered his questions, helped and guided him. So students, as you have seen in the summary, एडिशन अमेरिका का एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक था. उसने इलेक्ट्रिक बल्ब और ग्रामोफोन को इन्वेंट किया था. वो एक्सपेरिमेंट करने का शौकीन था और कभी कभी फनी क्वेश्चंस भी अपनी टीचर से पूछा करता था. एक बार उसकी टीचर ने क्लास में पक्षियों के बारे में बताना शुरू किया तो उसने पूछा कि पतंग बगैर पंखों के कैसे उड़ जाती है. टीचर इस बात पर परेशान हो गई और उन्होंने समझा कि जो विद्यार्थी है ये बहुत ही मूर्ख है और ये शरारती है और उन्होंने उसको स्कूल से बाहर कर दिया. जिस समय घटना घटी उस समय एडिसन की उम्र सिर्फ 8 वर्ष की थी. एडिसन की माँ उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देती थी और वो उसकी हर तरह से मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी. One day he saw a bird. It ate some worms and flew away. Edison prepared a mixture of the pulp, worms and made a maid servant drink it to see if she could also fly. The maid servant fell ill. He was warned by his mother not to repeat it. Once he imitated a hen and sat down on her eggs to hatch them, but he only broke the eggs and spoiled his shots. यहाँ पर उसके 2 एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया है. एक बार उसने एक पक्षी को उड़ते हुए देखा और उसने सोचा कि कीड़े खाती है इसलिए उड़ती है. उसने कुछ कीड़ों को इकट्ठा किया और उनका एक मिक्सचर बना करके एक नौकरानी की बेटी को दे दिया. उसको पी करके वो बीमार हो गई. इसलिए उसे वार्न किया गया कि वो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट हैं वो दोबारा ना करे. एक बार उसने एक hen को देखा जो अपने अंडों के ऊपर बैठ करके उनको से रही थी. उसने भी ऐसा करने को सोचा. उसने कुछ अंडे लिए, उन पर बैठा, लेकिन उनमें से कोई मुर्गी का बच्चा नहीं निकला बल्कि सारे अंडे फूट गए और उसने अपनी जो शॉट थी यानी उसकी जो नेकर थी वो खराब हो गई. He read a lot of books. He bought them
with the pocket money he received. At the age of 12, Edison became a newspaper boy in the railway. Out of his new income, he purchased more books and carried on experiments. He also gave $1 every night to his mother. He began to publish his own newspaper and made more money. With it, he set up a small laboratory in his railway wagon. One day, a bit of phosphorus fell down and caught fire. It burnt his newspapers. He was turned out of job at the next station. एडिशन जो था वो पढ़ने का बहुत शौकीन था, उसने बहुत सी किताबें पढ़ी थीं और उसे जो पॉकेट मनी मिलता था उन पैसों से वो किताबें खरीदता था और फिर उनको पढ़ता था। जब उसकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष की थी तो एडिशन ने रेलवे में पेपर बेचने का काम शुरू किया। अब उन पेपर के बेचने से उसकी जो इनकम हो रही थी उससे उसने और किताबें खरीदी और जो उसके एक्सपेरिमेंट थे, जो प्रयोग थे, उसको उसने जारी रखा। प्रत्येक दिन वो अपनी माँ को $1 देता था और उसने वादा किया था अपनी माँ से कि वो प्रत्येक दिन अगर वो कमाएगा तो अपनी माँ को $1 देगा और उसने अपने वादे को हमेशा निभाया। उसके कुछ समय के बाद एडिशन ने अपना खुद का न्यूज़पेपर पब्लिश करना शुरू कर दिया। उसने उसी रेलवे के डिब्बे में अपनी एक छोटी सी लेबोरेटरी भी सेट कर रखी थी और उसी में उसका प्रिंटिंग प्रेस भी था। एक दिन जब वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसी समय एक फास्फोरस का टुकड़ा जमीन के ऊपर गिरा और उसके अंदर आग लग गई और वो जलने लगे, सारे पेपर जलने लगे। उसने मदद के लिए लोगों को बुलाया, लेकिन अगले ही स्टेशन पर उसकी जो नौकरी थी वो चली गई, वो रेलवे से उसको निकाल दिया गया। फॉर नेक्स्ट 5 years ही चेंज जॉब, रीड बुक्स एंड लर्न बुक अ लॉट फ्रॉम द एक्सपर्ट ही मेट। अगले 5 वर्षों तक उसने तरह तरह की नौकरियां की, वो किताबें पढ़ता था और उनसे बहुत कुछ सीखता था और जब भी वो किसी एक्सपर्ट से मिलता था तो उनसे बहुत सारी चीज़ों को सीखता भी था। Once he repaired a machine in a factory and thus got a good job. एक बार जब वो अपने मित्र के साथ एक फैक्ट्री में था तभी वहाँ की एक मशीन खराब हो गई और एडिशन ने कुछ ही समय में उस मशीन को ठीक कर दिया। इस तरह से उसे उस फैक्ट्री में एक अच्छी नौकरी मिल गई। एडिशन नाउ इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, क्योंकि अब उसके पास पैसे थे इसलिए उसने अपनी लेबोरेटरी को और इम्प्रूव कर लिया। ही कंटिन्यूड विद एक्सपेरिमेंट्स एंड अर्न मोर फेम एंड मनी। उसने अपने प्रयोगों को जारी रखा और इस तरह से वो बहुत प्रसिद्ध हुआ और उसने बहुत से पैसे भी कमाए। इन 1878 ही मेड द ग्रामोफोन। 1878 में उसने एक मशीन बनाई, इट्स नेम वाज ग्रामोफोन। ग्रामोफोन नाम की उसने मशीन बनाई। ही डिमॉन्स्ट्रेटेड इट्स फंक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इट मेड हिम फेमस, सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस। इसको बनाने के बाद, इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, व्हाइट हाउस में वो इनवाइट किया गया। वहाँ पर उसने अपनी मशीन को डिमॉन्स्ट्रेट किया, लोगों को दिखाया। इससे वो बहुत फेमस हो गया, बहुत वो सफल हो गया और साथ साथ वो बहुत ही प्रॉस्परस यानी कि बहुत पैसे वाला भी हो गया। इन मार्च 1878 ही प्रॉमिस्ड हिज पीपल टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years. He worked hard and made an electric bulb. 1878 के मार्च में उसने अपने देशवासियों से वादा किया कि वो अगले 2 सालों में उन्हें बिजली देगा, इलेक्ट्रिक लाइट उनको प्रोवाइड करवाएगा। उसने बहुत कठिन मेहनत की और उसने 2 सालों के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब का निर्माण कर लिया। ऑन 4 सितंबर 1882 न्यूयॉर्क हैड इलेक्ट्रिक लाइट। 4 सितंबर को 1882 में जो न्यूयॉर्क शहर था वो रोशनी से जगमगा गया। He made 40 wartime inventions during the First World War. अपने इन इन्वेंशंस के अलावा उसने फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय उसने 40 wartime inventions भी किए। He was honored by the President of the United States, जिसकी वजह से उसे राष्ट्रपति के द्वारा अवार्ड भी दिया गया।
He died on 18th October 1931. He never invented anything destructive to life. उसकी मौत 18 अक्टूबर 1931 को हो गई, लेकिन उसने अपने पूरे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं बनाया जिससे मानव का अहित हो या उसको कोई परेशानी हो। He wanted to make people happy. वो लोगों को खुश करना चाहता था। He kept his promise. और उसने अपने वादे को निभाया। We need more men like Edison. हमें एडिशन के जैसे और व्यक्ति चाहिए। We should follow his example. और हमें उसके एग्जाम्पल को फॉलो करना चाहिए, हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। So the students, it was the summary. Now questions answers are given here also. As I told you that question answer will come in the examination. 3 questions will be given and you have to write any 2 answers. First of all, now see the questions. Question is given, who was Edison and why was he taken out of school? Edison कौन था, वो स्कूल से क्यों निकाल दिया गया? Edison was a famous American scientist. जो एडिशन था वो एक प्रसिद्ध अमेरिका का वैज्ञानिक था। Who invented gramophone and electric light. He was taken out of school because his teacher thought him to be naughty and stupid. वो स्कूल से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसकी अध्यापिका सोचती थी कि वो बहुत शैतान है और बहुत मूर्ख है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, व्हाई डिड द टीचर थिंक दैट एडिशन वाज स्टूपिड एंड नॉटी? टीचर ऐसा क्यों सोचती थी कि वो स्टूपिड एंड नॉटी है? वन डे एडिशंस टीचर वाज टीचिंग इन द क्लास. शी सेड अ थिंग कैन नॉट फ्लाई अनलेस इट हैज विंग्स. जब एक दिन अध्यापिका क्लास में पढ़ा रही थी, उन्होंने कहा कि एक वस्तु तब तक नहीं उड़ सकती है जब तक उसके पंख ना हो, यानी बगैर पंखों वाली कोई वस्तु नहीं उड़ सकती है। एडिसन स्टूड अप एंड सेड, एडिसन खड़ा हुआ और उसने कहा, मैडम अ काइट हैव नो विंग्स एट इट फ्लाइज. पतंग के भी पंख नहीं होते हैं फिर भी वो उड़ती है। सो द टीचर थॉट दैट ही वाज स्टूपिड एंड नॉटी. इसलिए अध्यापिका ने सोचा कि जो एडिशन है वो स्टूपिड एंड नॉटी है। क्वेश्चन इज गिवन, हाउ डिड एडिशन फाइंड हिज मदर द बेस्ट टीचर फॉर हिम? एडिशन की माँ उसके लिए सर्वश्रेष्ठ अध्यापिका थी। ये एडिशन को कैसे पता चला, उससे कैसे इसकी जानकारी हुई? एडिशन फाउंड हिज मदर द बेस्ट टीचर फॉर हिम एज शी ऑलवेज ट्राई टू गिव अ सेटिस्फैक्टरी आंसर टू हिज क्वेश्चंस एंड वाज नेवर टायर्ड ऑफ हिज क्वेश्चंस. एडिशन की माँ हमेशा उसे संतोषजनक उत्तर दिया करती थी और कभी भी वो एडिशन के प्रश्नों से थकती नहीं थी। एडिशन जो कुछ भी पूछता था वो उसकी माँ उसको बताने की कोशिश करती थी। व्हाट वाज द फनी एक्सपेरिमेंट फॉर विच एडिशन वाज पनिश्ड? वो कौन सा फनी एक्सपेरिमेंट था, मजाकिया एक्सपेरिमेंट था जिसकी वजह से एडिशन को पनिश किया गया, उसको पिटाई की गई, उसकी पिटाई की गई। वंस इन पोल्ट्री फार्म एडिशन सा hen सिटिंग ऑन इट्स एग्स. एक बार एडिसन ने एक पोल्ट्री फार्म में एक मुर्गी को अंडों पर बैठे हुए देखा। When he asked his mother about it, she answered. जब उसने अपनी माँ से इसके बारे में पूछा, उन्होंने कहा, The hen is hatching its eggs. जो मुर्गी है वो अपने अंडों को हैचिंग कर रही है। हैचिंग का मतलब सेना, से रही है। So एडिशन कलेक्टेड अ डोजन ऑफ एग्स एंड सेट ऑन देम. इसलिए एडिसन ने भी 1 दर्जन अंडों को इकट्ठा किया और उनके ऊपर बैठ गया। आफ्टर सम टाइम व्हेन ही गॉट अप ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स. कुछ समय बाद जब वो उठा तो उसने देखा कि उसे कोई मुर्गी का बच्चा नहीं मिला। ही हैड स्मैश्ड ऑल द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट्स. उसने सभी अंडों को फोड़ दिया था और अपनी शॉर्ट्स को खराब कर लिया था। फॉर दिस एक्सपेरिमेंट ही वाज पनिश्ड बाय हिज मदर. इस एक्सपेरिमेंट के लिए उसे अपनी माँ के द्वारा उसको पनिश किया गया, उसे दंड मिला। हाउ डिड एडिशन्स फादर इनकरेज हिम टू रीड मोर बुक्स? एडिशन के पिता कैसे उसे और किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे? एडिशन वाज फॉन्ड ऑफ बुक रीडिंग. एडिशन किताबें पढ़ने का शौकीन था। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक. उसे उसके पिता हर किताब को पढ़ने के लिए
25 सेंट्स दिया करते थे। ही रीड टू इनकरेज हैबिट, विद दिस पॉकेट मनी ही बॉट मोर बुक्स टू रीड। उसके पिता उसे जो भी पॉकेट मनी देते थे उसको इनकरेज करने के लिए वो उन पैसों से और किताबें खरीदता था और उनको पढ़ा करता था। Why did Edison join the railways and why was he dismissed from his job? एडिशन ने रेलवे को क्यों ज्वाइन किया और उसे नौकरी से क्यों निकाल दिया गया? Edison joined the railways because he needed money for buying books and carry on his experiments. He was dismissed from his job because fire broke out in the railway carriages due to his carelessness. एडिसन ने रेलवे को ज्वाइन किया था क्योंकि उसे और पैसों की ज़रूरत थी और वो किताबें पढ़ना चाहता था और अपने एक्सपेरिमेंट को जारी रखना चाहता था, लेकिन उसे नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि एक दिन उसकी लापरवाही से रेलवे के डिब्बे में आग लग गई जिसकी वजह से उसकी नौकरी चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस मेड बाय एडिशन। एडिसन इन्वेंटेड अ मशीन दैट कुड प्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस। एडिसन ने एक ऐसा इन्वेंशन किया जो मनुष्य की आवाज़ को प्रोड्यूस कर सकती थी, तब इसे ग्रामोफोन कहा जाता था, विच इज़ नाउ कॉल्ड द ग्रामोफोन, सॉरी, जिसे अब ग्रामोफोन कहा जाता है। ही इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब, उसने इलेक्ट्रिक बल्ब भी बनाया, एंड फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस ऑफ गिविंग इलेक्ट्रिक लाइट टू हिज कंट्रीमैन विद इन 2 years। उसने अपने वादे को पूरा किया और 2 साल के अंदर उसने अपने लोगों को लाइट प्रोवाइड करवाई। जो ग्रामोफोन है उसे सबसे पहले जब वो बनाई गई थी उसे टॉकिंग मशीन कहा जाता था, लेकिन अब उसको हम ग्रामोफोन कहते हैं। हु वाज एडिशन, हाउ डिड ही बिकम फेमस? एडिशन वाज एन अमेरिकन, ही वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। बहुत प्रतिभाशाली वो वैज्ञानिक था। ऑफ हिज एज, अपने युग का, अपने समय का। ही इज नोन फॉर मेनी यूजफुल इन्वेंशंस but he is famous for the invention of electric bulb after nearly 1200 experiment। बहुत कठिन परिश्रम उसने किया था, लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट उसने किए थे, तब जाकर के उसने बल्ब का निर्माण किया था। What did Edison promise to the people of America? How did he keep his promise? एडिसन ने अमेरिका वासियों से क्या वादा किया और कैसे उसने अपने इस वादे को निभाया? एडिसन promised to the people of India that he would, Edison promised to the people of America that he would give them electric light in 2 years. He kept his promise by inventing electric bulb and lighting his laboratory on New Year's Day 1880। एडिशन ने अमेरिका के लोगों से वादा किया था कि वो उनको आने वाले 2 वर्षों में इलेक्ट्रिक लाइट प्रोवाइड करवाएगा। उसने अपने वादे को निभाया और न्यू ईयर के दिन 1880 में उसने अपनी लेबोरेटरी में इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाया और उसका प्रदर्शन भी उसने किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड एडिशन कीप हिज वर्ड दैट ही वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट। कैसे एडिशन ने अपने उस वायदे को कायम रखा, उस वायदे को निभाया कि वह विश्व को यानी संसार को अधिक प्रसन्नता और अधिक प्रकाश देगा। द वर्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट। एडिशन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट ऑफ अमेरिका। एडिशन अमेरिका का बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। ही सेड दैट ही वुड लाइक टू गिव द वर्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट। उसने कहा था कि वह इस संसार को और अधिक प्रसन्नता और अधिक प्रकाश देगा। He made the world bright and happy by inventing gramophone and electric light। और उसने अपने इन दोनों वादों को निभाया। उसने ग्रामोफोन का इन्वेंशन किया जिसकी वजह से व्यक्ति प्रसन्न रहता है, और उसने इलेक्ट्रिक लाइट का निर्माण किया जिसकी वजह से ये संसार जो है वो और ज़्यादा प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड एडिशन सर्व हिज कंट्री
ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। कैसे एडिसन ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय अपने देश की सेवा की। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री अमेरिका। फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एडिसन ने अपने देश की सेवा की। He made 40 wartime inventions in order to help his country in war. उसने अपने देश की मदद करने के लिए 40 wartime inventions का निर्माण किया। ऐसे ही उसने आविष्कार किए जो युद्ध के समय उसके देशवासियों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुए। He was awarded a medal for his wartime services और अपनी इन सेवाओं के लिए, इन सर्विसेज के लिए उसे एक मेडल दिया गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एडिसन्स लास्ट डेज बिगिनिंग इन 1929। कैसे उसके अंतिम दिन गुजरे इसके बारे में आपको वर्णन करना है, बताना है। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड एंड एडिसन वाज ऑनर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1929 में एक सेलिब्रेशन हो रहा था, सिल्वर जुबली का प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जा रहा था, जिसमें एडिसन को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उसको सम्मान दिया। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट। एडिसन वहाँ पर धन्यवाद देने के लिए, धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए वो उठा। बट ऑल ऑफ सडन फेल इल, लेकिन अचानक ही वो वहाँ पर गिर पड़ा और बीमार हो गया। ही डाइड ऑन 18 अक्टूबर 1931 और इस तरह से वो 18 अक्टूबर 1931 को एक्सपायर हो गया। दस इंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ मैन। और इस तरह से एडिसन का जो जीवन था, एडिसन की जो महत्वपूर्ण जीवन था, उसका घटनापूर्ण जीवन था, वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया। सो स्टूडेंट्स, इट वाज द समरी ऑफ द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द सप्लीमेंट्री एंड द क्वेश्चंस। बिसाइड्स दीज क्वेश्चंस, 2 more questions will come as I told you in the beginning of the video. Second question will be related to true false. 4 questions will be given, you have to write true or false, and third question will be related to multiple choice questions. These questions also will be in 4 marks. So you have to write all these questions, you have to prepare true false and multiple choice also related to this chapter. Thank you boys.